The state of Chhattisgarh has 27 districts. Narayanpur is one among them. It is one of the oldest settlements in the heartland of India. It has two different parts, one which is town and is the mark of development. Narayanpur is blessed with heavenly beauty. Also, Madia, Muria, Gond and Halba are major tribes of here. When the world has changed a lot from time to time, Narayanpur still preserves its tradition, culture and values. Maybe we'll see that sunshine. Hi, I'm Jagriti. I'm a travel enthusiast, explorer, and of course a proud Bangalorean. Very expensive. I believe that people should be connected with their tradition and culture just like people of Narayanpur have been doing since ages. Some traditions have become crucial and essential part of their lives, such as tapping selfie from todi trees. पेड़ जो शुरू में निकलता है फूल टाइप का, उसको ढोंडा बोलते हैं हम लोग। जैसे फूल टाइप का उसका निकलना चालू हो जाएगा, उसके बाद उसको काटते हैं। काटने के बाद 2-4 दिन के बाद उसको ऐसी उसमें हंडी उंडी नहीं टांगते हैं, हंडी वगैरह नहीं टांगते हैं। 2-4 दिन के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आना चालू हो गया, उसके बाद हंडी डालते हैं। जैसे भरता है ना, इतना भर गया, फिर उसको खाली कर देते हैं। तुरंत रहता है ना, एकदम मीठा रहता है, शक्कर जैसा मीठा। Selfie is a type of liquor which is also called gorga in their colloquial Gondi language. People here are deeply attached with their todi trees that can generate up to 20 liters of liquor per day. To save themselves from lethal diseases like malaria, dengue, people here consume chapora chutney made of red ants. लेकिन चिड़िया का छोटा रहता है और उसका बड़ा रहता है। पत्ता को मतलब घुमा के बनाया रहता है, उसके अंदर उसको गिरा के उसको वो करना पड़ता है, सूखा में लेके। उसमें अंडा भी रहता है बहुत सारा। Tribals usually grind it with garlic, onions and green chilies to savor with the rice. Cockfight is extremely popular among tribals and is more like a heritage sport for them, a miniature of Jallikattu maybe. People are very passionate about the sport, played during their weekly heart markets as they call it, and they gamble quite a lot of money in this sport. The weekly markets or the Haat Bazaars are the lifeline of tribals in Narayanpur. People living in remote areas buy their daily essentials from the weekly markets. They also sell the local minor forest produce in these markets, which make these markets the spine of tribal economy. ये पूरा अबूझ मार के आदमी है सब। हाँ, कौन-कौन गांव बता लो 3-4?
ये टोंडा बेड़ा के हैं, आपका गोमा गाल के हैं, हाथनार के हैं, टोंडा बेड़ा और आपका आदेर है, जाटलूर है, ये हाँ सभी तरफ के सब अपने क्षेत्र पैदल आते हैं। यहाँ भी बाजार करके वापस जाओ। हाँ तुरंत, ज़्यादा दूर होने से इन लोग हल्टिंग रहेंगे, कल निकल जाएंगे सब। रुकेंगे रात में? रुकेंगे। कहाँ रुकते हो? कहीं भी अपना पड़ोस के हिसाब। Swami Vivekananda Ashram schools have been playing a very crucial role in bringing education to the far-off forest and Naxal-infested areas. जैसे कि आप जानते होंगे अबूझमाड़ करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेकर के है। इसमें करीब 37,000 जो लोग वास करते हैं। यहाँ हमारे मुख्य लक्ष्य है कि अबूझमाड़ के भीतर जो गरीब जनजाति है, जो आदिम जनजाति कहलाते हैं अबूझमाड़िया, उन लोग के लिए हम काम करते हैं। हमारे 80% बच्चे उसी कम्युनिटी के हैं। बेसिकली नारायणपुर का मैं बता सकता हूँ, नेशनल लेवल में इतने बच्चे गए हैं, फुटबॉल में हैं, वॉलीबॉल में है, दौड़ में है, आर्चरी में है। अभी 2 साल से यहाँ मलखम चालू किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा है। Special healthcare camps or shivers are organized in Anganwadi centers to deliver basic healthcare facilities to the tribals. Motorcycle ambulances have played a very important role in reaching the remote areas. जो बहुत अंदर की कुछ महिलाएं हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते या हमारे लिए भी कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, तो ऐसी जगह की महिला भी खुद से आना चालू की है। Narayanpur, as we all know, is bestowed with natural resources and scenic beauty. It has been a popular spot for tourists and researchers from across the world. During 1980s, Naxalism and insurgency started infesting in this region, engulfing innocent, unassuming tribals into violence. Naxal ko sa kendo. Kamtan matram paisa ka len way matram watura 8 baje aw kisi tur मैदान थे उसना के ओना दिलवरी ते वाइलेर में 3 दिया मत रोम दिलवरी आता ना चना तो मुकबर बने मात नी जोरे फुटी इंदु तानी चेवना सिना ना पीला माइता दिन बने ओन पीला तो बने फोरमा जाता कोई तो बन फोरमा जाता 1 2 3 4 5 ये क्या था? स्कूल। और स्कूल तक क्या हुआ इसके? छोड़ दिए नक्सली लोग, पता नहीं उनका क्या था। वही 9-10 बजे छोड़ फोड़ कर दिए, सुबह फिर 2-1 बजे चल दिए। बहुत लोग आए थे तो जल्दी छोड़ के चले गए। ये है कोकामेटा का स्कूल जो कि तोड़ दिया गया नक्सलियों द्वारा। ये देखिए कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। विकास अगर यहाँ पूरा पहुँचेगा अबूझमाड़ तक तो पूरा जनता उनके पक्ष हो जाएंगे, फिर हमसे विरोध हो जाएंगे। हमको जनता से सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, इसलिए सरकार का योजना को यहाँ अंदर घुसने नहीं देना है। Young innocent generation is enticed into joining Naxalism through false promises and flowery propaganda. To strengthen their hold and create fear among tribals, they are mercilessly tortured and killed in guerrilla courts or Jan Adalats, falsely declaring the poor victims as police informers and moles, destroying lives of thousands of people living in these forests. The failure of police and administration in protecting the tribals deteriorated their image and credibility and created a wide gap between police and tribals. जैसे कि ये पूरा कैंप
सराउंडिंग हमारे पूरे संतरी 24 आवर्स यहाँ तैनात रहते हैं, जो उनके पास नाइट के लिए नाइट विज़न है और दिन के लिए बाइनाकुलर है। उनके थ्रू पूरे चारों तरफ अपने नज़र बनाए हुए रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट होता है तो एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं, और इनकेस कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो जाए कि कुछ ज़्यादा मूवमेंट है, कुछ सस्पेक्टेड कुछ दिख रहे हैं, तो कैंप स्टांटू की एक कार्रवाई होती है, जिसमें वो एक प्रॉपर तरीके से एक अलर्ट किया जाता है, जिसमें जो बैरिकों में रहने वाले अन्य जवान हैं वो पूरे सपोर्ट में पूरे सराउंडिंग कैंप को कवर करके पोजीशन में रहते हैं। लोकल लोगों का हमारे को सपोर्ट थोड़ा कम है, इनसे संबंध नहीं रहते, क्योंकि वो लोगों से जैसे हम संबंध बनाना चाहते भी हैं तो नक्सली लोगों को धमका देते हैं। हमारे साथ काफ़ी बार हुआ कि जैसे सब्जी वाला, हम सब्जी लोकल से लेना चाहते थे तो उनको गाड़ी वालों को धमका दिया कि अगर आप फोर्स को सब्जी दोगे तो हम आपको मार देंगे, आपकी गाड़ी जला देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वगैरह। हमारा भी पहला फोकस है कि यहाँ का रोड का निर्माण का कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि कड़ीनार से कड़े बेटा होते हुए रोड, ये हमारा जो बागसूदी का रोड है उसको हमको मेन खोलना है। प्राथमिकता शासन के लिए है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द चालू है, तो हमारा मेन फोकस अभी कड़ीनार के आसपास का इलाका है। In the fierce struggle, lot of families lost their children. Brothers and neighbors became enemies. But police relented and started opening up camps in remote areas, because of which the atmosphere of fear started getting subdued. Families that had once scattered are now returning to their homes, and positive image of police and governance started getting बस built मेरा up. यही सोच है कि एक लड़की है, हम उस जगह में भी कई सारी परिस्थितियों में गुजर चुके, कई मुठभेड़ में, कई हमला में, हर जगह हम रह चुके। तो आज भी मेरा यही सोच है कि यहाँ पे मैं पुलिस के सहारा में मैं अच्छा काम करूँ और आगे बढ़ूँ। हमारे अलावा भी महीने में यहाँ करीब 50 से 60 गाड़ियाँ और बिकती हैं, तो सब मॉडल मिला के हीरो की 130 बिकती है, बाकी मॉडल 50-60 और बिकते हैं। लगभग 200 गाड़ियाँ यहाँ महीने में अभी बिकती है, जो कि पहले 50 के आसपास ही बिकती थी। रोडें अच्छी बन गई हैं, नारायणपुर में RT ऑफिस खुल गया है, 7 बजे के बाद यहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं था। आज रात्रि में बस भी चलती है, क्योंकि हर जगह कैंप खुल गए हैं, पब्लिक डरती नहीं है। पहले पब्लिक 7 बजे के बाद निकलती नहीं थी, अब आप कोकामेटा भी रात को जा सकते हो, ओरछा भी आज रात को जा सकते हो आप। Because of the pressure from police, many hardcore Naxalites surrendered and joined the mainstream. तो उन लोगों का नक्सलियों का गांव जाना घूमना अभी कम हुआ है, अभी ज़्यादा मतलब गश्त होते रहता है, इस वजह से कम हुआ है। Roads started getting built. The villages were getting connected to the mainstream governance. Haath bazaars are being opened up again. की स्थिति एक नंबर है, मतलब आपकी कैंप बन गई, एक नंबर लगे हम लोग को। हम बेझिझक काम कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, रात को सो सकते हैं। कैंप नहीं था तो रात को हम लोग तो कहीं कुत्ता भूख रहा था तो कहीं अलग लुढ़क जाते थे, किसके घर जाके सोएंगे बोलते थे। अभी कैंप आया, हम लोग को किसी का चिंता नहीं। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड वेलफेयर और एजुकेशन, इस पे डिफरेंट तरह के कैसे वहाँ पर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। और इसमें केवल हमको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि माओवादी क्षेत्र तक हम अंदर तक हम लोग जा नहीं सकते हैं, और जाने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो सड़कें भी नहीं बनी है प्रॉपर, आपका पहुँचविहीन क्षेत्र है, जंगल है, पहाड़ है, और इसके बाद भी सिक्योरिटी रीजन भी रहती है। इन कारणों से हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हमको अपने को आम जनता से विश्वास में लेने में दिक्कत ज़रूर होती है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के कैंप और उनकी सर्चिंग प्रॉपर कंटिन्यू बनी रहती है। उसके साथ साथ हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, और आम जनता को मोटिवेट करके हम पूरा विकास में, मतलब बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका बाकी चीज़ों में, खेती किसानी में भी उनको लाके हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको मुख्यधारा में लेके आएँ। कैंप खुलता है, रोड बनता है,
रोड बनता है तो बिजली आती है, पानी आता है, कम्युनिकेशन आता है, मार्केट्स डेवलप होने लगते हैं। फिर जो लोगों का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो मेजरली यहाँ पे लोग बेचते हैं, उन लोगों को बेचने के लिए राइट वैल्यू मिलती है जो गवर्नमेंट डिसाइडेड है। उन लोगों को जो मीडिएटर्स होते हैं, मिडलमैन होते हैं, वो लूट नहीं पाते हैं। और जो एक कैंप खुलने से जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस होता है, वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ में। उनके बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, बसेस चलने लगती हैं, फिर हॉस्पिटल्स PHC कम से कम ऑपरेट होने लगते हैं। ये चीज़ें पहले लोगों ने कभी सोची नहीं थी। अब कैंप्स खुलने लगे हैं तो ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं, इसलिए लोग कैंप मांगते हैं। इसके एक ही समाधान है मैडम, एजुकेशन, जॉब, मतलब जितने भी बोल रहे नक्सलाइज्म है या जो भी है, मतलब इवन डिजीज बर्डन भी बढ़ रहा है अपने हॉस्पिटल में, सबका समाधान एजुकेशन होगा तो लोग लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मतलब सब ठीक हो जाएगा। When I started this journey to Narayanpur, I didn't know what to expect. But now I know. The fight is still on. But soon we will witness the tribal who will freely study, progress, enjoy their culture, dance to their tune of peace and prosperity, happily intoxicate with Sulfi and Mahua. But they will never forget the blood of thousands of tribals shed to achieve this. पंडाना